Right, welcome back for the last session of this two-day seminar, jointly organized by Indian Knowledge Systems at IIT Madras and Central Institute of Indian Languages, Mysore. In this session, we have two talks. I present the first one to you. We have Dattarajji Deshpande. Just 2 or 3 important information about him. There is something very remarkable about his journey. In his childhood, when people went to school, he decided to travel across the country and stayed with Vedic scholars in different places and learnt things from them. He has been he is trained in traditional Gurukul system as well, and now after renouncing his small scale business, he has renounced his career and family to volunteer at Bharatiya Section Mandal, which is working for the revival of Gurukul education system in India. Dattarajji Deshpande will talk about is Sanskrit really the mother of all languages, his reflections on that. नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रथसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् अहे बुद्धियमन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदा विदुः ऋचः सामानि यजुगुंषि सा हि श्रीरमृता सताम् देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जन्दुहानाः धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानान्निशसादमन्द्रा चतस्र ऊर्जन्दुदुहे पयागुंसि क्वस्विदस्याः परमं जगाम अनन्तामन्तादधिनिर्मितां महीं यस्यां देवा अददुर्भोजनानि एकाक्षरान् द्विपदागुं षट्पदाञ्च वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वाः पशवो मनुष्याः वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता सा नो हवञ्जुषतामिन्द्रपत्नी वागक्षरं प्रथमजाऋतस्य वेदानां मातामृतस्य नाभिः सा नो जुषाणोपयज्ञमागात् अवन्ती देवी सुहवा मे अस्तु यामृषयो मन्त्रकृतो मनीषिणः अन्वैच्छन् देवास्तपसाश्रमेण तान् देवीं वाचगुं हविषा यजामहे सा नो दधातु सुकृतस्य लोके चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः
गुहात्रीणि निहितानेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति. Fine. The mantras that I chanted are from different parts of the Veda. They are spread across different Vedas also. The last mantra that you heard, Chatvari Vak Parimita Padani, exists in all Vedas and gives us the understanding of the dimensions of speech. Therefore, I wanted to start with those mantras. I'll prefer speaking both in Hindi and English. I will be mixing both of them because using a Bharatiya Bhasha to explain certain Bharatiya aspects is necessary. It is very difficult for a person like me to express everything in English. I don't say it is the shortcoming of the language, but it is a shortcoming of me at least. So आज हम जो है संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. साथ में संस्कृत अलग है क्या, संस्कृत सभी भाषाओं की तरह एक भाषा है क्या, इज इट वन मोर लैंग्वेज लाइक एनी अदर लैंग्वेज or is it something different? A few years ago, around 2018-19, I was studying Dharma Shastra and Vedanta under Swamiji, and both of us used to have a lot of conversations because at that time only Battle for Sanskrit and Being Different and all other books had come. So we used to have conversations, and Swamiji used to tell me a lot of things, and based on his inputs and my understanding, because I have a childhood where I got exposed to so many things, and also I got exposed to a lot of Marxist and socialist literature in Kannada language. I used to read whatever I used to get in hands. So I used to read paper from the first page to last page every day, and tabloids also. So I have read so many things, and when Swamiji started explaining certain things, it started making sense to me. And also I got exposed to the Indological work that was happening around at that time, and I started making notes. What's wrong with modern Hindu discourse? I found certain inaccuracies or shortcomings from our side also. We were responding to somebody, Western Indology, etc., from our side also. At that time, I did note that Sanskrit is not a language. संस्कृत भाषा नहीं है. भाषा ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे तो भाषा है, बट व्हेन वी कंसिडर लैंग्वेज, ऐसी भाषा ऐसी अंग्रेजी जैसी एक भाषा नहीं है, लैटिन जैसी एक भाषा नहीं है, जर्मन जैसी एक भाषा नहीं है, तो ये कुछ और है. इसे मैंने नोट किया था, एक 25 थिंग्स आई हैड नोटेड डाउन, व्हाट्स रॉन्ग विद मॉडर्न हिंदू डिस्कोर्स. उसमें मेन ये था कि हम त्रिविध दृष्टि हम नहीं देख पा रहे हैं, त्रिविध दृष्टि से हम चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं. त्रिविध दृष्टि क्या है? अधिदैविक दृष्टि, अधिभौतिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि. सो ऐसे दैविक और आत्मिक दोनों दृष्टियों से देखा जाए तो संस्कृत भाषा नहीं है, अन्य भाषाओं जैसी एक भाषा नहीं है, ऐसा हम कह सकते. तो इसको, इन दोनों बातों को आज हम एक्सप्लोर करेंगे इन विषयों में. बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर उपस्थित है, उनके सामने मैं बोलने के लिए हिम्मत कर रहा हूँ, और ये मेरा रेगुलर काम नहीं है, रेगुलर अध्ययन अध्यापन इत्यादि में मैं नहीं हूँ. सिंस लास्ट 6 years I have been working on revival of Gurukul education system. Therefore, most of the time I will be checking the land records, cement, concrete, contractor, civil engineer. So in these kinds of things I have been doing research since last 6 years, but suddenly I was asked to speak about Panini. So डिफिकल्ट काम को आज मैं हाथ में ले लिया, क्योंकि मौका जाने देना नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्पीक. मैं कुछ नया बोलने जा रहा हूँ ऐसा मैं नहीं मानता हूँ. कनन जी जैसे विद्वान जो है, मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ इन बातों को पहले ही बता चुके होंगे. पुनरुक्ति अगर होती है तो क्षमा चाहूँगा. अभी जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इसमें विलियम जोन्स जैसे कई लोगों ने शुरू में ये कहा
कि जो है संस्कृत जो है ये भाषाओं की जननी है, यूरोपियन लैंग्वेजेस की भी जननी है। और बाद में ये प्रोटो इत्यादि जो अन्य भाषाओं को जननी साबित करने की जो होड़ लगी हुई है, इसके बारे में कल मेघ जी ने और शास्त्री जी ने, जैसे शास्त्री जी ने बताया ही है। ऐसा देखा जाए तो वहां से लेकर आज तक, और सभी आज तक मतलब कांची परमाचार्य जी जो है उन्होंने भी कहा था एक कन्वर्सेशन में कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है, क्योंकि शब्द साम्यत्व, शब्दों में साम्यता होने के कारण माता है। आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, जैसे उच्चारण में सिमिलरिटीज होने के कारण ये प्रधान रूप से ये बात आती है। जोन से लेकर परसों ही, कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले, ये 7 जनवरी को, 7 जनवरी, सेल भैरप्पा जी आल्सो repeated the claim that संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। और कुछ लोग मैंने देखा कि तमिल को भी मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ऐसा रिसर्च पेपर्स भी लिख चुके हैं। बहुत सारे पेपर्स इस पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो भैरप्पा जी क्या कह रहे हैं, इन द बिगिनिंग संस्कृत स्टूड एज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, encouraged all languages was the reason for their growth and prosperity। तो यहाँ पर जो है आदान प्रदान की बात हो रही है, आदान प्रदान के आधार पर मातृत्व का आरोप लगाया जा रहा है। और देखेंगे तो विदेशी लोग भी कम नहीं है, वो भी लोग कह रहे हैं कि लैटिन वाज द मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो ऐसे बहुत सारी बातें चल रही है। हाँ, सॉरी। तो इन भाषाओं को अध्ययन करने का जो क्रम है, द मेथड विच दे आर स्टडीड, वो अलग ही है। इस कारण से वह दृष्टि है। मैं आज जो बोलने जा रहा हूँ, ये आई एम नॉट काउंटरिंग एनी लिंग्विस्ट क्लेम। मैं केवल एक वैदिक की दृष्टि, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ वैदिक याज्ञिका पर्सन। आई एम अ याज्ञिका, आई हैव स्टडीड ऋग्वेदा along with कर्मकांडा। आई एम अ याज्ञिका पर्सन। फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ याज्ञिका हम व्याकरण को कैसे देखते हैं, लिंग्विस्टिक्स वाले कैसे देखते हैं, ये सब आप जानते ही है। मगर हमारी दृष्टि क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा आज। तो वह दृष्टि जो है एकेडमिकली एक्सेप्टेबल हो सकता है या नॉन एक्सेप्टेबल हो सकता है, वो एकेडमिक स्कूल के अंदर फिट नहीं भी हो सकता है, ये सब बाद में देखेंगे। केवल मेरा मत मैं अपने प्रस्तुत करता हूँ। अभी यहाँ अन्य भाषा स्वरूप लिखा है मैंने, वहाँ टाइटल गलत है, अन्य भाषा स्वरूप नहीं, भाषा शास्त्र, जो आज लिंग्विस्टिक्स जिसको कहते हैं, भाषा शास्त्र की जो दृष्टि है, उस दृष्टि से भाषाएं जो है अननादि है, यानी कोई भी भाषा अनादि नहीं है। कुछ निर्दिष्ट समय में, जिसको हिस्ट्री सेंट्रिसिटी कहते हैं, इतिहास में एक घटना हुई, उस घटना में कुछ सिविलाइजेशन हुआ, उस सिविलाइजेशन का पार्ट एक भाषा थी, एक लैंग्वेज थी। तो लैंग्वेज, कल्चर, ये दोनों को युगपत बोलते हैं, साथ में बोलते हैं, बोथ आर इंटीग्रेटेड, ऐसी परिभाषा है। तो लैंग्वेज और कल्चर, इससे आगे क्या है, आइडेंटिटी है। सो आइडेंटिटी इज बेसिकली जियोपॉलिटिकल। हम भारतीय दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो तुम्हारी भाषा, हमारी भाषा, ये एक दृष्टि है। मानवता की भाषाएं एक दूसरी दृष्टि है। तुम्हारी भाषा, हमारी भाषा, अस वर्सेस देम, ये जो आता है, बाइनरी आती है। बाइनरी क्यों आती है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल कारणों से आती है। अभिनिवेश, जिसको अभिनिवेश कहते हैं, कि हमारी भाषा प्राचीन है, ऐसा कोई कह दे, नहीं 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 हमारी भाषा प्राचीन है, ऐसा कहने का जो इमीडिएटली वो ट्रिगर क्यों होते हैं, क्योंकि अभिनिवेश कि हमारी भाषा प्राचीन है, क्योंकि हमारा कल्चर भाषा से बनती है, तो हमारा कल्चर प्राचीन है, हम श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठत्व की जो आभास, श्रेष्ठत्व का आभास जो है, उस कारण से यह होता है। तो कौन सी भाषा प्राचीन है, ये साबित करने की होड़ इसीलिए लगी हुई है। तो सभी भाषाएं कहीं ना कहीं प्रारंभ हुई है, ये सिद्धांत का मानना है। और आदि शुद्धत्व, आदि में भाषा जो थी वो शुद्ध थी, धीरे 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 जो है वो अशुद्ध होती आ रही है।
ये इनका सिद्धांत है। अशुद्ध होने का कारण क्या है? काल बाध्य, वो 13-14 कारण बताते हैं। उनमें मुख्य कारण जो है देश काल बाध्यत्व, यानी अभी हम एक चेन्नई सिटी में एक भाषा बोल रहे हैं, चेन्नई से बाहर थोड़ा जाएंगे तो वहां पर जो है देश का बदलाव हो गया, देश बदलने से जो है वहां अलग प्रकार की भाषा बोलने लगते हैं। तो देश के कारण जो है भाषा बदलती है या विकृत होती है। और काल, आज अच्छी भाषा बोल रहे हैं तो अगले अगले जनरेशन जो है वो अच्छी भाषा नहीं बोलेगी। ऐसा देश काल बाध्यत्व, इसको मैं कहता हूँ। तो इन दोनों कारणों से जो है शुद्धि या विकृति भाषा में आती है, यह उनका मत है। और अन्य अन्य भाषा शब्दादान, अन्य भाषाओं से शब्दों का स्वीकार करना, अडॉप्ट करना, शब्दों का आदान, शब्दादान, शब्द दान नहीं, शब्द आदान, आदान प्रदान जिसको कहते हैं। तो उच्चारण दोष से भी विकृति होती है। शारीरिक रूप से भी उच्चारण दोष हो सकता है। हमारा जो मुख की रचना जो है उसमें शिथिलता आती है, दांत गिर जाते हैं तो भी उच्चारण दोष बनता है, या फिर अनभ्यास के कारण भी उच्चारण दोष बनता है, अन्य अन्य कारणों से उच्चारण दोष बनता है। उच्चारण दोष से विकृति आती है। और जो अधिक विकृत है, जिसमें विकृति ज्यादा आई है, जो भाषा ज्यादा डिस्टॉर्ट हुई है, वह सबसे प्राचीन है। क्योंकि प्राचीनता का मापदंड क्या है, क्राइटेरिया क्या है उसको मापने का? मापदंड ये है कि ये बहुत प्राचीन है मगर अब खराब हो गई है, क्योंकि प्राचीन काल में वो शुद्ध था, ऐसा मानना है। और चॉम्स्की जैसे कई सारे लोगों ने तो विकृति का चार्ट भी बनाया है कि कितने साल में कौन सी लैंग्वेज कितने परसेंटेज जो है विकृत होती है। मैंने लिंग्विस्टिक्स का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए मैं कोई स्टेटमेंट सर्टिटली नहीं कर सकता उस पर, मगर ये मैंने चार्ट को देखा है। और शुद्धता से अशुद्धता का सिद्धांत जो है, शुद्ध भाषा होती है, प्योर लैंग्वेज जो है बाद में जो है इम्प्योर लैंग्वेज बनती जाती है, ये सिद्धांत है। इसके कारण में आप देखेंगे तो यहाँ स्टीफन हॉकिंग की जो कोट वहां पर दिख रही है, भौत शास्त्र के विषय में उनका ये कहना है कि इंक्रीज ऑफ डिसऑर्डर की जो सिद्धांत है, यही दृष्टि यहाँ पर लिंग्विस्ट लगा रहे हैं। उसी दृष्टि से जैसे कहा कि ये फिजिक्स भी मेरा विषय नहीं है, इसलिए स्टीफन का जो सिद्धांत है उस पर उसका खंडन या मंडन कुछ भी नहीं करने नहीं जाऊंगा, मगर लिंग्विस्टिक्स में, भाषा शास्त्र में यह सिद्धांत अप्लीकेबल नहीं है, ये मेरा कहना है। भाषा शास्त्र में उसी सिद्धांत से देखने के कारण जो है यह दृष्टि आ रही है। दिस पर्सपेक्टिव इज बिकॉज ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग। और लीनियर सेंस ऑफ टाइम और सिस्टम टू चॉइस, जो व्यवस्था से अव्यवस्था, जो पहले सब कुछ व्यवस्थित थी, अब जो है टी कप का ही उदाहरण दिया है स्टीफन ने। टी कप रहता है, वो टी कप गिर जाता है, वो टूट जाता है, तो उसको आपस में जोड़ नहीं सकते, क्योंकि व्यवस्था थी पहले, अव्यवस्था बन गई बाद में, वो फिर से व्यवस्थित हो नहीं सकता। किंतु आप देखेंगे हमारे दृष्टि से, हमारी दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे, वैशेषिक कालचक्र इत्यादि दृष्टि से आप देखेंगे, जो है युगपत साइमल्टेनियसली जो है विकिरण भी हो रहा है, केंद्रीकरण भी हो रहा है कणों का, और केंद्र अपसारी मार्ग भी चल रहा है और केंद्रगामी भी चल रहे हैं कण। और सृष्टि स्थिति लय इतिहास में हुई एक घटना नहीं है, इट इज नॉट एन इंसिडेंट इन द हिस्ट्री, निरंतर प्रक्रिया चल रही है। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे तो ये हमको स्वीकार्य नहीं है, लिंग्विस्टिक्स की जो दृष्टि है ये स्वीकार्य नहीं है। इसका कॉन्ट्रडिक्शन में क्या हो रहा है? करेक्शन निरंतर हो रहा है और रिसर्जेंस भी, पुनरुत्थान भी निरंतर हो रहा है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो सभी भाषाएं जो है शुद्धता की ओर जा रही है। ऑल लैंग्वेजेस आर इवॉल्विंग टुवर्ड्स द परफेक्ट फॉर्म, मगर ये लोक में हमको दिखता नहीं है। 2-3 जनरेशन के पहले जो है तमिल अच्छे बोलते थे, आज के तमिल अच्छे नहीं बोलते हैं, ऐसे लोगों का कहना है। मगर आप देखेंगे तो इसमें भाषा शुद्धि के अभियान सावरकर जी ने चलाया था,
अब हम किताब को किताब नहीं बोलना चाहिए, पुस्तक बोलना चाहिए। हाँ, कोशिश को कोशिश नहीं प्रयास बोलना चाहिए। ऐसे भाषा शुद्धि का अभियान सावरकर जी ने चलाया। कई सारे शब्द जो है कॉलोनियल शब्दों का, फारसी शब्दों का, अरबी शब्दों का, ऐसे भाषा शुद्धि का अभियान बहुत सावरकर जी ने काम किया। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इट इज़ नॉट पॉपुलरली नोन टू एवरीबडी। केवल सावरकर जी ही नहीं, बहुत सारे लोग कर, हम भी प्रयास करते रहते हैं। हम हलोक के बजकर हरिओम बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रयास व्यक्तिगत रूप से होता है, सामूहिक रूप से भी होता है। और बाल्य संस्कृत, बाल्यकाल में हम कुछ चीज़ों को नहीं बोल पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए रवि रवि बोलो बोलो तो छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? लवी बोलते हैं। र के स्थान पर ल का उच्चारण करते हैं। किंतु बाद में क्रमशः संस्कार हो जाता है कि रवि बोलना है, लवी नहीं बोलना है। तो इस प्रकार इंडिविजुअली कलेक्टिवली दोनों तरफ से आप देखेंगे तो भाषाएं जो है शुद्धता की ओर ही जा रहे हैं, क्रमशः अशुद्ध नहीं हो रहे हैं। और इनका जो हिस्टोरिसिटी मैंने कहा, हिस्टोरिसिटी नहीं, हिस्ट्री सेंट्रिसिटी, जो हम कितने पीछे जा सकते हैं, ऐसा हम वो देखते हैं कि 5000 से 7000 वर्ष तक हम पीछे जा सकते हैं। और उसमें परिवर्तन कितने आते हैं, साउंड टाइप्स ऑफ चेंजेस में जो है 13 प्रकार के उन्होंने बताया है। और ये जो है 1450 में हुआ वाउल शिफ्ट इत्यादि हुआ। तो इस आधार पर जो है भाषा जो है किस प्रकार शुद्धता से अशुद्धता की ओर बढ़ती है, ये सिद्धांत उनका है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए, आदि शुद्धता प्यूरेस्ट फॉर्म था पहले, और व्यवस्था से अव्यवस्था, सिस्टम टू कियोस, इस दृष्टि से अगर देखेंगे, और संस्कृत को भी आदि शुद्ध, सबसे प्राचीन जो है बहुत शुद्ध था, अब अशुद्ध है ऐसा हम मानते हैं। और विकारानुकूल, संस्कृत में विकृति आ सकती है ऐसा हम मानते हैं। तो संस्कृत अवश्य मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, इट्स द ओल्डेस्ट वन एंड इट्स द मदर। मगर मैं इसका कॉन्ट्रोडिक्टरी व्यू अभी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इस दृष्टि से ठीक है, अभी मैं कांची परमाचार्य जी को, भैरप्पा जी को, या फिर ऐसे कई महान लोगों को मैं खंडित करने के लिए नहीं बैठा हूँ। दे आर राइट, बट फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दे आर राइट। मगर जो दूसरी दृष्टि है, उस दूसरी दृष्टि को देखने के लिए हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्या है? भेद दृष्टि एवं उच्च नीच दृष्टि। जैसे मैंने कहा अभिनिवेश, हमारा सुपीरियर, तुम्हारा इंफीरियर इत्यादि, जो भेद दृष्टि है, भेद दृष्टि के कारण जो है जन्य जनक भाव आता है कि इस भाषा से ये पैदा हुआ, इस भाषा से ये पैदा हुआ, हमारी भाषा से तुम्हारी भाषा पैदा हुई ना, मतलब हम सुपीरियर तुम इंफीरियर। तो ये जन्य जनक भाव का मूल जो है ये भेद दृष्टि और असम्पशन ऑफ सिंगल ओरिजिन। एक ही जगह से जो है इंसान ने बोलना सीखा, भूगोल के कहीं एक पॉइंट में कुछ लोगों ने बोलना सीखा और उन्होंने बाद सबको सिखाया। ये जो असम्पशन है कि ऐसा हुआ, एक घटना हुई, उस घटना से ये सब हुआ, तो ये भी सिंगल ओरिजिन भी। और सिंगल ओरिजिन से थोड़ा आगे बढ़कर जो है बाद में फैमिलीज बनाए उन्होंने, लैंग्वेज फैमिलीज, ग्रुप्स बनाए। तो इसका ये भी इसका कारण है। और संस्कृत की पाश्चात्य साम्यत्व, उन्होंने संस्कृत को भी इसी तरह क्यों माना, उन्होंने इसकी अनन्य सदृशत्व क्यों नहीं पहचाना, अपनी भाषा की तरह इसको भी एक भाषा क्यों माना? तो इसमें भी कुछ साम्यत्व है। क्या है? बहुधा शब्दोत्पत्ति। भाष्यकारों का कहना है कि देयर आर 12 to 13 ways in which words get generated। भाषोत्पत्ति के मार्ग जो है 12-13 है। और देश काल बाधकत्व, अभी हम यहाँ जैसे संस्कृत बोलते हैं, जैसे वर्णोच्चारण करते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश वाले वर्णोच्चारण नहीं करते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद में जो है वो ऋग्वेद में नहीं है उच्चारण, हम यंच वयन द्विष्मः बोलते हैं, यंच बयन द्विष्मः बोलते हैं। तो हाँ हाँ, तो इस प्रकार देश काल बाधकत्व, देश के आधार पर उच्चारण दोष आदि इसमें भी संस्कृत में भी दिखाई देते हैं। बाद में वो संस्कृत कर लेते हैं वापस पुनश्च, वो बात अलग है, मगर ये दिखती है। और प्रयोग शैथिल्य,
प्रयोग शैथिल जैसे मैंने बताया कि ओरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, तो अच्छा संस्कृत बोलने वाला भी जो है बाद में बुरा संस्कृत बोलने लगता है, क्योंकि उच्चारण संभव ही नहीं है। और कालानुगुण्यन, काल से भी जो है शुद्ध संस्कृत उच्चारण निकल जा सकता है, परंपरा ही नहीं बची। अगर अगर शिक्षा का अध्ययन नहीं हुआ, शिक्षा का अभ्यास नहीं हुआ, तो संस्कृत विद्वान भी अशुद्ध संस्कृत बोलते हैं। तो इस प्रकार प्रयोग शैथिल्य जो है, ये भी इन कारणों से जो है उन्होंने कहा कि ये भी एक भाषा है, हमारी तरह ये भी शिथिल होता है, विकृत होता है। और जो है बात यह है कि मैं वन बाय वन इसको रिवील करना चाहिए, बट आई एम यूजिंग अ पीडीएफ, therefore इट इज नॉट पॉसिबल। कल मनोज शास्त्री जी कह रहे थे कि बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक्स क्रोनोलॉजी जो है पॉसिबल नहीं है, वही लोग बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार उसी शास्त्र से उसके प्राचीनत्व को सिद्ध करना संभव नहीं है। और इसका खंडन कैसे, हम फिर सही क्या है, हमारी दृष्टि क्या है, सही है हमारी दृष्टि, सही नहीं कहूंगा उसको मैं, हमारी दृष्टि क्या है। जो है शब्द नित्य है, कहीं किसी एक घटना से भाषा बनी ऐसा हम मानते ही नहीं है। शब्द शब्द जो है नित्य है, वो सत्शब्द नित्य है या अपशब्द नित्य है वो बाद में देखेंगे, किंतु शब्द नित्य है। और शब्द की जैसे शक्ति है वैसे अपशब्द की भी शक्ति है। जी जी, रेफरेंस दे रहे हैं गुरु जी। जो है शब्द की शक्ति है तो अपशब्द की भी शक्ति है। तो उसी तरह और शब्द अपशब्दयो अनादित्वम, शब्द और अपशब्द दोनों अनादि है। केवल संस्कृत शुद्ध आदि में शुद्ध था, बाद में विकृत हुआ, ये सिद्धांत यहाँ खंडित होता है। शब्दापशब्दयो अनादित्वम, ये कौन कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। सिद्धांत मंजूषा देखेंगे आप तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। और संस्कार के बाद प्राकृतत्व राहित्य, जैसे अभी रवि का उदाहरण बताया मैंने, लवि बोलते हैं। अभी उदाहरण और एक उदाहरण लेंगे, मुतुल। मुतुल हमारे माय बॉस मुकुल कानेटकर, हिज नेम इज मुकुल कानेटकर, वो बोल रहे थे परसों मुझे, मैं इस कॉन्फ्रेंस से पहले उनसे बात कर रहा था कि मैं किस विषय पे बोलूं, तो उन्होंने टॉपिक यही उन्होंने ही दिया मुझे, इस पर बोलो। तो वो बता रहे थे उदाहरण, मैं बचपन में मुतुल कानेटकर बोलता था अपने नाम, तुम्हारा नाम है क्या, ऐसा कोई पूछता तो मुतुल कानेटकर, मुतुल मुतुंद कानेटकर ऐसे बोलता था। बाद में जो है माँ ने सिखाया ये मुतुल नहीं मुकुल बोलना चाहिए। वो ओरल ट्रेनिंग भी हुई, मसल ट्रेनिंग भी हुई, मैंने बोलना प्रारंभ किया, मुकुल कानेटकर बाद में बोलने लगा। अब जो है मैं संस्कृत संस्कार आ गया ना, भाषा का संस्कार आ गया वहां पर, संस्कृत होने के बाद अब मैं वापस मुतुल बोलता हूं क्या? नहीं बोलता हूं। तो इसलिए संस्कार के बाद प्राकृतत्व राहित्य, संस्कृत होने के बाद वापस वो प्राकृत नहीं बनता है। हाँ, तो जो है भाषा अशुद्धता की ओर बढ़ती है, यह सिद्धांत यहाँ पर खंडित होता है। और हम ये बोल सकते हैं कि भाषा, हम बात जो है इंडिविजुअल उच्चार की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं, हम कलेक्टिव लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे। ये पूर्व पक्ष हो सकता है, मगर यहाँ आप देखेंगे तो भाषा और वाणी में भेद है। भाषा यानी मैं यहाँ देवनागरी में भाषा लिखा हूँ, मगर लैंग्वेज, लैंग्वेज और वाणी में भेद है, भाषा में नहीं, लैंग्वेज और वाणी में भेद है। हम वाणी जब शुद्ध हो जाती है तो वाणी फिर से विकृत नहीं होती, संस्कृत हो जाती है। लैंग्वेज जो है डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, मतलब लैंग्वेज यानी कलेक्टिवली हम जिसको हम कल्चर का पार्ट जिसको बोल रहे हैं, इन दैट कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज कैन गेट डिस्टॉर्टेड। मगर इंडिविजुअली वाणी के रूप में, वाणी एक बार संस्कृत होने के बाद संस्कृत वाणी नहीं होती। हाँ, अनन्य सदृशत्व, संस्कृत जो है सभी लैंग्वेजेस की तरह वन मोर लैंग्वेज नहीं है, इसकी कुछ विशेषता है। वो क्या है? उसके कारण यह अन्य भाषाओं की तरह इसकी आयु हम डिसाइड नहीं कर सकते, हाउ ओल्ड इट इज ऐसा डिसाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आगे आगे बताता हूँ, इसलिए आग्रह लिखा है वहां पर मैंने। उसको देखने से पूर्व कुछ विषयों को देखेंगे। व्याकरण क्या करता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्याकरण? व्याकरोति, अलग करना, सेग्रीगेशन।
पृथक करोति। किम पृथक करोति, क्या अलग करता है? आप देखेंगे तो जगत स्थितेभ्यः शब्देभ्यः साधु शब्दान पृथक करोति। विश्व में कई सारे शब्द हैं, कई सारे लोग रहते हैं, कई प्रकार के वाणी पद्धतियों में बोलते हैं, अपने अपने पद्धतियों में बोलते हैं। उनमें साधु शब्द है, असाधु शब्द है। उनमें से साधु शब्द क्या है, सही शब्द क्या है, राइट वर्ड्स, साइंटिफिकली राइट वर्ड्स, उसको पृथक करना, अलग करना, यही व्याकरण का उद्देश्य है। और व्युत्पाद्यन्ते ऐसा बोलते हैं तो वो नए शब्द बनाना, नए साधु शब्द कैसे बनाना, हाउ टू क्रिएट अ न्यू वर्ड, व्युत्पाद्यन्ते व्याकरणते, यही है। तो ये काम व्याकरण करता है संस्कृत में। उस काम के बाद वह संस्कृत बनता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो गगरी, गढ़ा इत्यादि शब्द जो है, कन्नड़ में गड़िगे बोलते हैं, तेलुगु में कुंडा बोलते हैं, इंग्लिश में पॉट बोलते हैं, इतने सारे शब्द हैं। इन सारे शब्दों में से घट चेष्टायाम धातु से घटते इति घट, ये शब्द बनता है। इसका घट का पृथक्करण, घट को अलग अलग कर दिया उसने। किसने किया? ये व्याकरण ने किया। इतने सारे शब्दों में से घट को क्यों अलग किया? क्योंकि वो जो है सही साधु शब्द है। अब जो है यहाँ एक पतंजलि एक बात करते हैं कि इतने सारे शब्द है तो ये एक सही शब्द है, ये गलत शब्द है, दिस इज राइट वर्ड, दिस इज रॉन्ग वर्ड, ऐसा हम बोलते जाएंगे तो कितने शब्दों के बारे में बोलना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ चीजें है मार्केट में, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये हार्मफुल है, ये हार्मफुल है, ये जो है पॉइजनस है, ऐसा हम बोलते जाएंगे सुपरमार्केट में, तो कितने को बोलते जाएंगे हम? हाँ, नीति ने, हाँ हाँ, पाणिनि डजंट फॉलो दैट वे। उन्होंने क्या किया? डॉक्टर ने बोला कि आपको जो है शाम में ये खाना चाहिए, आपको रात में फ्रूट खाना चाहिए, कौन से फ्रूट खाना चाहिए, ये सिट्रिक फ्रूट नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, नहीं, आपको कौन सा फ्रूट खाना चाहिए बता दिया। बाद में उसके अलावा बाकी सारे निषेध हो गए। ये देखिए, भक्ष्य नियम है ना, अभक्ष्य प्रतिषेध हो गम्यते। भक्ष्य नियम बता दिया तो पर्याप्त है, अभक्ष्य क्या है पता चल जाता है। उसी तरह जो है गौरित्यस्य शब्दस्य, गावी, गोणी, गोता, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। इन शब्दों में से गौरित्येष शब्द इति लघुत्वात् शब्दोपदेश, कॉम्पैक्ट वे में कहना। कल कॉम्पैक्ट की बात हो रही थी, पाणिनि ने कितने पेज, खंडन सर बता रहे थे कि इतना छोटा ग्रंथ है अष्टाध्यायी। तो वो कॉम्पैक्टनेस क्यों आया? वो लघुत्व के कारण इस प्रकार से आया। इस प्रकार जो है पाणिनि ने क्या किया, या फिर व्याकरण ने क्या किया, पाणिनि नहीं, व्याकरण, पाणिनि वन ऑफ देम, व्याकरण ने क्या किया कि साधु शब्दों को पृथक कर दिया। तिब्बती ग्राम प्रतिपाठन प्रतिदेश बहुत ज्यादा होते हैं ये अपशब्द। शब्द तो कम होते हैं, अपशब्द कितने होते हैं किसको भी पता नहीं, ये गिनना भी अपशब्दाधिक्यत्वात्। सो विल गो फॉरवर्ड। प्रयोजन क्या है? व्याकरण ने क्या किया ये तो बता दिया। व्याकरण ने क्या किया? शब्दों को अलग कर दिया। बहुत सारे फ्रूट्स थे, उनमें से एप्पल को अलग कर दिया, ऐसा एग्जांपल लेंगे, एनालॉजी। अब अलग करने के बाद, पृथक्करण के बाद क्या है, क्यों किया ऐसा? रहने देते, ऐसे ही रहने देते। उसका करने का कारण यह है कि ये वेद की रक्षा के लिए किया। इसी रक्षा, ऊहा, आगम, लघु, संदेह, ये जो है 5 प्रयोजन जो है पतंजलि ने ही बताया कि व्याकरण का ये सारे प्रयोजन है। तो वेद की रक्षा के लिए, यानी इसका यह तात्पर्य हुआ कि व्याकरण से पूर्व वेद उपस्थित था, यानी वेद में जो है वह साधु शब्द है, यानी व्याकरण से पहले संस्कृत था। व्याकरण आने के बाद संस्कृत नहीं आया। संस्कृत को संस्कृत बनाए रखने के लिए व्याकरण आया। टू कीप संस्कृत या संस्कृत, व्याकरण हैज कम। सो वेद की रक्षा पहला उद्देश्य। दूसरा जो है ऊह, अभी दैव पितृकर्म में श्राद्ध करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, ये सब करते हैं, तो वहां पर हमें बोलना पड़ता है अस्मत् मातरम, ये सब बोलते हैं। वहां पर जो है वेद में यथावत हमें जैसे विभक्ति प्रत्यय इत्यादि चाहिए वैसा नहीं रहता है, उसको बदल के बोलना पड़ता है। बदल के बोलने के लिए व्याकरण का ज्ञान चाहिए।
यह उसका दूसरा प्रयोजन। उदाहरण के लिए मयि मेधा मयि प्रजाम मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधा मयि प्रजाम मयि इंद्र इंद्रियं दधातु मयि मेधा मयि प्रजाम, ये मंत्र है, ये वेद मंत्र है। इसको आशीर्वाद करते समय उपनयन में क्या बोलते, त्वयि मेधाम त्वयि प्रजाम, मयि की जगह त्वयि लगाना चाहिए। ये कैसे ज्ञात हुआ? ये व्याकरण के कारण ज्ञात हुआ, यह उसका प्रयोजन है। वे हाँ हाँ हाँ। और मंत्र के अंत में स्वाहा को जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है? अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम मम स्वाहा, वहां पर मम अनुस्वार रहेगा या नहीं रहेगा, ये कैसे कैसे तय हुआ? स्वाहा को जोड़ना है ना हमको वहां पर। तो जोड़ने के लिए भी ये ऊह आगम, आगम यानी ब्राह्मणेन निष्कारणेन षडंगो वेदो अध्येतव्य ज्ञेयश्च। हाँ, ये जो हाँ, ये जो नियम है निष्कारण, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी हाँ, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, अ ब्राह्मण शुड स्टडी वेदा अलॉन्ग विथ 6 लिम्स। ये आगम है, ये नियम है। उस नियम को अनुपालन करना है। षडंगो वेदो, षडंग में शिक्षा व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष कल्प, इसमें व्याकरण आ ही जाता है। तो इट्स अ मैंडेटरी थिंग टू डू विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो उस पर्पस से भी जो है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये जो है यूजफुल है। और लघु कॉम्पैक्टनेस, अभी पढ़ने की बात हुई, कॉम्पैक्ट अगर होना है, बहुत सारे वाक्य नहीं बोलना है, तो कुछ ही शब्दों में बोलना है, तो सूत्र जैसे निर्माण हुआ है, योग सूत्र हो, ब्रह्म सूत्र हो। रिसेंटली इन भारतीय शिक्षण मंडल also has composed sutra, shiksha sutra about education. It is going to become the guide for upcoming NEP. 108 sutras have been composed by Bharatiya Shikshan Mandal on the education in a traditional structure. So asandeha, sandeha nivritti, clarification. For clarification also we need व्याकरण। सो इसमें यथावत रक्षणीय, वेद यथावत रक्षणीय है, वाई इट शुड बी प्रोटेक्टेड एज इट इज। यथावत रक्षणीय है, ये सर्वमान्य है, एवरीबडी नोस वाई इट शुड बी प्रोटेक्टेड। विश्व में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। देयर इज नथिंग, देयर इज नो अदर सिस्टम इन द वर्ल्ड विच हैज बीन क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द फॉर्म ऑफ अ साउंड। वेद इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ अ साउंड, इजंट इट? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कोई दूसरा प्रयत्न कहीं भी नहीं हुआ है। तो व्याकरण एकमात्र ऐसा उदाहरण है। तो वेद की भाषा स्वयं ही संस्कृत है, व्याकरण आने से पूर्व ही संस्कृत था, ऐसा मैंने बताया ना। तो पूर्व ही संस्कृत है, किंतु वो पाणिनीय संस्कृत नहीं है, पाणिनि के द्वारा संस्कृत नहीं है, वो पूर्व ही संस्कृत हो चुका था। हाँ, तो आप देखेंगे तो ये पाणिनि का टाइमलाइन भी तय करते हैं कि पाणिनि का जन्म कब हुआ था इत्यादि तय करते हैं। उससे पूर्व क्या था इत्यादि देखेंगे तो आप त्रेता युग में राम हनुमान संवाद में देखेंगे तो वहां पर द्विजातिरिव संस्कृताम, मैं द्विजों की तरह संस्कृत बात करूं और कौन सी भाषा बात करूं, अभी ऐसा हनुमान को डाउट होता है क्योंकि 2 लोग आए हुए हैं। हाँ, वहां पर भी इन बोथ इंसिडेंट्स, वहां पर अशोक वन में जाने के बाद भी वहां पर मैं कौन सी भाषा बात करूं अभी, ये भी डाउट होता है। वहां पर भी जो है, इससे ये ज्ञात होता है हमको कि वेदाध्ययन संपन्न होने का प्रमाण, इफ समबडी स्टडीड वेदा, ये कैसे पता चलता था? उनकी वाणी से ही पता चल जाता था, यानी इट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट। रक्षा की आवश्यकता के कारण ही व्याकरण को भी वेदांग में मुख कहा गया है। ऐसी जो वाणी की जो शुद्ध स्वरूप था, उसकी स्वरूप थी, उसकी रक्षा करने के लिए ही, टू प्रोटेक्ट दैट, व्याकरण को बनाया गया। मुख द्वारा रक्षित होने से अनंत काल पूर्व से वेद विद्यमान है। व्याकरण आया और उसने उसकी रक्षा की, संस्कृत बन गया, ऐसा नहीं है। व्याकरण आने से अनादि काल पूर्व से ही शब्द अनित्य है, ये तो कह रहे हैं। शब्द से साथ साथ हम वेद को भी अनादि कहते हैं ना, परंपरा। संबंध समुद्देश पदकांड वाक्य particularly since this point of time the shabda has been denoting meaning. Then he says, Indriyanam suvishayesh samadriyo yata yatha
वादिरपि शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा. So just in that Advaita Vedanta you have Shat Anadaya. Yes. When we think at point of time the sense organs have been like I mean like that since Anadi. जब से इंद्रिय है, जब से कान है, जब से वाणी है, जब से हम कुछ बोलना जानते हैं, तब से जो है ये वेद है. वेद अगर है तो संस्कृत भी है. तो इसलिए हाउ ओल्ड इट इज ऐसा पूछते ही मुझे गुस्सा आता है. और जब कोई बोलता है कि वैदिक लिटरेचर, तो आई गेट फ्यूरियस. इट इज नॉट लिटरेचर, ऐसा मैं बोलता हूँ. But that perspective is not acceptable in many places, I guess. तो ठीक है, समय होते जा रहा, मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी जल्दी. तो अतः जन्य जनक संबंध नहीं, अपितु युगपत मानुषी एवं संस्कृत. जन्य जनक संबंध कब है? तब पहले एक थी, बाद में दूसरी आई, तब जो है बाप कौन है बेटा कौन है ये आएगा. मगर हम हनुमान का उदाहरण में देख रहे हैं, वहां मानुषी बात करूं या कोई संस्कृत बात करूं, ऐसा वो डाउट में है. यानी दोनों थे साथ में. हाँ, इसमें एक उदाहरण बताता हूँ आपको. सब जानते हैं, मत्तूर नाम का एक गांव है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में. वहां पर सारे लोग संस्कृत बोलते हैं, ऐसा प्रसिद्ध है. अगर संस्कृत आते ही उनका प्राकृत चला गया क्या? यानी वो संकेती भाषा बोलते हैं क्या? संस्कृत के आते ही संकेती चली गई क्या? नहीं, आज भी घर में वो संकेती ही बोलते हैं. युगपत साइमल्टेनियसली दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तीनों भी एग्जिस्ट करते हैं. बहुत सारे लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं. तो ये जो सिद्धांत है कि वेद ये संहिता टाइम, ये ब्राह्मण का टाइम है, ये उपनिषदों का टाइम है, ये पुराणों का टाइम है, ऐसा जो टाइमलाइन बनाया गया है वैदिक, उसमें ये अगर एक उपनिषद में अगर लिखा हुआ है कि जो है कर्म जो है करना व्यर्थ है, ऐसा अगर लिखा हुआ है, तो उनका ये डिसाइड कर देते कि हाँ इन दिस पीरियड कर्मा स्टॉप्ड. సారీ, టైం తక్కువ ఉంది. ఐ హ్యావ్ వెరీ లిటిల్ టైం. yes we'll discuss later. So in the western discipline, if something comes, something is negated, they consider it as the end of it. अभी सत्यनारायण पूजा करने से जो है कोई लाभ नहीं है, ऐसे कोई वेदांत वाले बोल दिए, लिखा हुआ मिल गया हमको, इन दिस पीरियड सत्यनारायण पूजा स्टॉप्ड. नहीं, for that particular sannyasi it stopped. In the other house if it is still going on, she will teach her kids also. So ऐसे जन्य जनक संबंध कब है आता है कि पहले एक आया तो दूसरा चला गया, इसी दृष्टि से आता है. मगर यहाँ पर हम मानुषी संस्कृत इत्यादि जो रामायण में उदाहरण देखते हैं, इससे जो है जन्य जनक नहीं है, दोनों विद्यमान हैं. जैसे मैंने कहा प्राकृत शब्द संस्कृत शब्द दोनों अनादिकाल से है, साइमल्टेनियसली दोनों एग्जिस्ट करते हैं. इसलिए कौन मदर लैंग्वेज, कौन मदर है, कौन उसके चिल्ड्रन है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता हमारी दृष्टि से. हाँ, मानुषी दोषगामी होती है, संस्कृत निर्दुष्ट है. ऑब्वियसली दोनों होते हैं. मानुषी में जो है दोष विकार इत्यादि आ सकते हैं, परिवर्तन आ सकते हैं, संस्कृत में नहीं आते. इतना ही ये अंतर है. और जो है शब्द अपशब्द दोनों अनादि अनंत, ऐसा मैंने कहा. तो यहाँ देखेंगे तो प्रसिद्ध शिक्षा में प्रसिद्धमपि शब्दार्थम, इसमें पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि, फिर से मैं इसको व्यक्त करता हूं, ऐसा कहते हैं. फिर से यानी बार बार जो है आते रहते, शिक्षित करते रहते लोगों को. और जो है यहाँ पर देखिए शंभुमत 63 वा 63 और 64 लेटर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ. वो कौन से है, क्या है? शंभु मते मता, शंभु ने बताया था शुरू में अनादिकाल में. शंभु यानी कौन? नटराज इत्यादि कुछ भी हम बोल सकते हैं. तो वहां से आया हुआ है. और प्राकृते संस्कृते चापी, दोनों में स्पष्ट कह रहे हैं.
ये दोनों 63 64 वर्ण जो है ये कहाँ थे? प्रकृत में भी थे, संस्कृत में भी है। और स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा, ब्रह्मा ने जो बताया, यानी ब्रह्मा ने प्रकृत भी बताया, संस्कृत भी बताया। ये कौन कह रहे हैं? शिक्षा, पाणिनि शिक्षा कह रही है। तो इस दृष्टि से देखेंगे, और ध्वन्यालोक देखेंगे, आप वाक्यपदी देखेंगे, भरत ये नाट्यशास्त्र देखेंगे, ये सभी जो है इसी मत को मानते हैं कि ब्रह्मा से या शंभु से इन सारे शब्दों का और शब्दों के प्रभाव का उगम हुआ है। और अनन्य सदृशत्व, पहली बात तो ये होगी कि माता पिता बेटा इत्यादि का निर्णय हुआ। अभी आगे बढ़ेंगे तो ये अलग कैसे हैं? मैंने कहा संस्कृत एक भाषा नहीं है, मैंने एक नोट किया था, लैंग्वेज नहीं है। वो कैसे, किस आधार पर मैंने वो नोट किया था? आप देखेंगे तो संस्कृत जो है पुण्य कारक है, अलौकिकत्व है उसमें, और वह अदृष्टजनक है। इष्ट प्राप्तये अनिष्ट परिहाराय अलौकिकम मार्गम यो वेदेति स वेदः, ये सायणाचार्य कहते हैं। यानी इष्ट की प्राप्ति करने के लिए, डिजायरेबल जो भी है मुझे उसको अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए, और अनिष्ट परिहाराय, जो अनडिजायरेबल है उसको, हाँ, उसके रिनाउंस करने के लिए, अलौकिकम मार्गम यो वेदेति, जो अलौकिक मार्ग बताता है वह वेद है। यानी वेद को लिटरेचर बोलते ही गुस्सा क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि अलौकिकम मार्गम ये स्पष्ट बता रहे हैं आचार्य, यानी ये लौकिक साहित्य नहीं है, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अलौकिकत्व तो ये पुण्यकारक है, ये फल देने वाली बात है, ये फलदायकत्व तो इसमें है। दूसरा क्या है? अदृष्टजनक, यानी उसके केवल उच्चारण से ही पुण्य मिलता है हमको। कल बता रहे थे गुरुजी, ज्ञानपूर्वक शब्द प्रयोगे धर्म, ज्ञानपूर्वक सही सही शब्द का प्रयोग करो, बस वही धर्म है, उसी से पुण्य मिलता है। और पतंजलि भी कहते हैं एक शब्द समज्ञातः संप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामदुग् भवति, ये सब प्रसिद्ध है। और आप देखेंगे तो कर्म करते हैं हम, यज्ञ अग्निहोत्र इत्यादि जो है, अग्निष्टोम अत्रात्र वाजपेय पौंडरिक इत्यादि जो भी यज्ञ श्रौत स्मार्त अनुष्ठान इत्यादि जो भी है, उनमें शुद्ध वर्णोच्चारण होना चाहिए, इट इज मैंडेटरी। उसका अगर गलत बोलते हैं तो क्या फल मिलता है इत्यादि भी प्रसिद्ध कहानियां हैं। वृत्र को हरण करने जाके वो खुद इंद्र ये हो गया, पराजित हो गया इत्यादि कहानियां हैं। तो वहां पर अगर गलत शब्द हवन करते समय, यज्ञ करते समय अगर गलत मंत्र का प्रयोग करते हैं, गलत वर्ण का गलत तरीके से उच्चारण करते हैं, तो प्रायश्चित्तीयाम सरस्वती इष्टिम, प्रायश्चित के रूप में सरस्वती इष्टि करना चाहिए। इफ यू प्रोनाउंस वर्ण inaccurately, you need to do the Saraswati Ishti in the यज्ञ कर्म। तो ये कौन सी भाषा में है? भाषा नहीं, कौन सी लैंग्वेज में है? और इसका आउटकम कौन सी लैंग्वेज में है? कहीं पर आपको नहीं मिलता। अनन्य सदृशत्व, यूनिकनेस, जो शब्द प्रयोग के नियम वैदिक कर्मों के लिए ही है। ऑल लैंग्वेजेस might have grammar, but those grammatic rules are for the communication or the growth of the language। मगर यहां पर नियम क्यों है? नियम इसलिए है क्योंकि आप अपने कर्म में उसका सही उच्चारण करो। द पर्पस ऑफ द व्याकरण इज टू प्रोटेक्ट द फॉर्म ऑफ द साउंड, दैट साउंड शुड बी यूज्ड एज इट इज इन द कर्म, प्योर इन द प्योरेस्ट फॉर्म। अगर नहीं होता तो क्या होता है? तेसुरा हेलयो हेलय इत्यादि जो है, आप पतंजलि महाभाष्य में इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर क्या होता है। हाँ जी 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 जी। तो व्यवहार से परौकिक अलौकिक प्रयोजन, व्यवहार और पारमार्थिक ये जो दो विषय है, व्यवहार से अलग कम्युनिकेशन इत्यादि कई प्रयोजन, लौकिक प्रयोजनों से परे पारलौकिक प्रयोजन, स्वर्गादि प्रयोजन हो सकता है, या मोक्षादि प्रयोजन हो सकता है, या पुण्यादि प्रयोजन हो सकता है, ये सारे प्रयोजन। और आप देखेंगे तो इसमें लौकिक अन्यादृशत्व, लौकिक रूप से भी ये बहुत अलग है। संस्कृत केवल आध्यात्मिक या अधिदैविक रूप से अलग है ऐसा नहीं है,
लौकिक में भी क्या अलग है, सतत परिष्कृति, इसमें कॉन्स्टेंटली जो है इसको प्यूरिफिकेशन होते रहता है, इसको इसके नियम ऐसे हैं। और विकार की गतिरोधकता, अगर किसी ने गलत बोल दिया, अभी मैंने कुछ गलत बोल दिया तो गुरुजी तत्काल बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा वो नियम है, तो नियम हो तो स्वीकार करना पड़ेगा, वो परिष्कृत हो जाता है। और आयु निर्धारण असंभव, जैसे अनादि होने के कारण और सर्वदा शुद्ध होने के कारण जो है, अशुद्ध होने पर भी फिर से परिष्कृत होने के कारण जो है आयु निर्धारण बेस्ड ऑन, जैसे मैंने कहा कि इतने साल में इतना विकृत होगा, जो चोम्स्की का जो चार्ट है कि इतने 10 ईयर्स में इतना परसेंटेज लैंग्वेज जो है ये होगा, ये सब संभव नहीं है, परिष्कृति होती रहती है। इसलिए आप जो है इसका काल पता ही नहीं कर सकते। और अधिक मात्रा में शब्द है, विश्व में किसी भी भाषा में इतने शब्द नहीं है, ऐसे इतने शब्द है। और निर्दिष्ट और निर्दुष्ट प्रामाणिक शब्दकोश, ऐसे कोश कहीं नहीं मिले, किसी भाषा में नहीं मिलेंगे। और नए शब्दों को निर्माण करने का सामर्थ्य, और सभी के लिए समझने योग्य। उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पर, अश्वदह, अगर कन्याकुमारी में किसी ने सीखा तो अश्वदह, अश्व यानी क्या है, और अश्वम ददाती क्या है, ये सीख लिया उसने, अश्वदह शब्द उसने प्रयोग किया। उसकी मातृभाषा तमिल हो सकती है या अन्य कुछ हो सकती है। कश्मीर में जाकर वहां अश्वदह बोलेगा तो भी उसको समझ में आता है। समझने की एक प्रक्रिया है, अगर नहीं समझ में आता है तो सीख लिया तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ नियम अप्लाई करने पड़ेंगे बस। तो इस प्रकार सभी के लिए समझने योग्य और सभी के समझने के लिए आसान होने के कारण, आसान यानी ट्रैवल आसान होने के कारण सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। इवन जैन बौद्ध आदि ग्रंथ भी आरंभ में संस्कृत में लिखे गए थे, बाद में अन्य अन्य भाषाओं में लिखे गए। तो इस प्रकार ग्रंथ रचना अधिक, ये इतने जो है लौकिक अन्यादृशत्व, ये अलग संस्कृत को जो है अन्य लैंग्वेज से अलग करने वाली चीजें ये सब है। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे अभी लोक भेद और वेद भेद, लोके वेदे च, जैसे गीता में भी शब्द प्रयोग हुआ है, अतोस्मि लोके वेदे च कहते हैं। और परापर भेद, जैसे हम व्याकरण के आरंभ में, अष्टाध्यायी के आरंभ में नृत्यावसाने नटराज राजो, यानी ये शब्द कहाँ से आए, माहेश्वर सूत्र कहाँ से आए, किसी ने बनाया ऐसा नहीं, हम उसको परा मानते हैं, परा से आया। तो परापर भेद और प्राकृत संस्कृत भेद, जब शिक्षा वाली बात है, पाणिनीय शिक्षा त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा, इसको पहले श्लोक को पहले मैंने बता दिया कि प्राकृत और संस्कृत दोनों साथ में होने के बावजूद भी जो है युगपत है। और प्रयोजन भेद, लोक व्यवहार भाषा और धर्म कर्म भाषा, बाकी सभी लैंग्वेजेस जो है लोक व्यवहार हेतु ही है, उसका उतना ही प्रयोजन है। किंतु जो है संस्कृत का प्रयोजन लोक व्यवहार से परे धर्म का प्रयोजन भी है। और धर्म का प्रयोजन इत्यादि जो है हम उसको अलग भाषा में बोलते हैं। आजकल लोग इसको न्यूरो साइंटिस्ट इत्यादि लोगों ने जो किया है, ये फेमस पेपर है, आप सब लोग जानते ही होंगे। तो ये जो है इसमें आप देखेंगे, मैंने येलो में हाईलाइट किया है, इंडियन ट्रेडिशन होल्ड्स दैट द रिगरसली मेमोराइजिंग, जो शिक्षा के अनुसार, शिक्षा शास्त्र के अनुसार ये जो है पद्धति है, उस पद्धति के कारण ही ये संभव है। और आगे बढ़ते हैं, ये संस्कृत की जो है यूनिकनेस हुई। अब आगे आएंगे, शब्दोच्चारण मात्र से अनुभूति। अभी उदाहरण के लिए सत्य है, सत्य यानी क्या, इसका अर्थ बोलना लोक में व्यवहार में रूढ़ी में आना पड़ेगा, इट इज नोन होना पड़ेगा, उसको पॉपुलरली सबको पता होना चाहिए, तब जो है आप सत्य बोलोगे, तब जो है सत्य समझ में आता है आप क्या बोल रहे हैं। किंतु शब्दोच्चारण मात्र सही तरीके से, इन राइट वे, इफ आई प्रोनाउंस सत्यम, इट शुड बी अंडरस्टूड बाय यू। मुझे भी उस समझ में आना चाहिए, आपको भी समझ में आना चाहिए। ऐसे उच्चार करने की जो प्रक्रिया है उसको सिखाना जो है शिक्षा का काम है। वही एजुकेशन इज कॉल्ड शिक्षा। एजुकेशन शिक्षते वर्णोच्चारण ज्ञानम यत्र सा शिक्षा, शिक्षा सूत्र भी मैंने अभी बताया। तो शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि जो है आप उसको सही ढंग से, जहां जहां से प्राण, कितना प्राण लगाना चाहिए, कहाँ कैसे उच्चारण होना चाहिए, ये जो शिक्षा शास्त्र आप पढ़ेंगे तो आपको पता ही चल ही जाएगा। जो परा पश्यंती मध्यमा के स्तर में जो है, मध्यमा के स्तर में जो है वह एज इट इज बाहर आना चाहिए और एज इट इज कन्वे होना चाहिए। एज इट इज कन्वे कैसे होगा, उनकी समझ, अगर वोकैबुलरी वीक है तो कम समझ में आएगा, इनकी वोकैबुलरी कम है तो ये भी ठीक से बोल नहीं पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो है शिक्षा
के द्वारा आपकी वाणी यदि सुसंस्कृत हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है, तो आप केवल बोलने मात्र से वो समझ में आएगा। वो क्या बोलते, मध्यमा के स्तर पे जो है वो ट्रांसमिशन होता है। वैसे मध्यमा के स्तर पर जो हम चाहते हैं, मेरे मन में जो भाव है वह भाव यथार्थ रूप से वहां पहुंचने चाहिए। तो पहुंचाने की क्षमता मेरे अंदर, फैकल्टी डेवलपमेंट मेरी होनी चाहिए। वह फैकल्टी डेवलपमेंट करने की प्रक्रिया ही एजुकेशन है। Therefore इट इज कॉल्ड शिक्षा। ये हमारे मुकुल कानेटकर जी, फिर से मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जो वो बोलते हैं कि विवेकानंद का लीजिए, शंकराचार्य का लीजिए, वो कितनी भाषाओं को जानते थे, वो कितने लोग कितनी जगहों पर गए, वो कैसे कम्युनिकेट कर पाए, केवल लैंग्वेज से कम्युनिकेट किए क्या? जो है अगले स्तर में जाके कम्युनिकेट करना पड़ता है। जैसे अभी वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते ही लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे, ये बोलते, उनसे पहले बहुत सारे लोगों ने बोला था वही बात उसी स्टेज पे, किसी के लिए ताली नहीं बजा, केवल विवेकानंद जी के लिए क्यों बजा? वहां जो शिक्षा वाली जो बात है, शिक्षित व्यक्ति का जो बात है, वह पहुंच जाती है। आप इसमें बहुत सारी बातें हैं, समय कम है इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं। हाँ, शिक्षा में पदक्रम विशेषज्ञो वर्णक्रम विचक्षण स्वरमात्रा विशेषज्ञो गच्छेद आचार्य संपदम, ये जो है, जिसको ये सब पता नहीं है उसको आचार्य नहीं बनना चाहिए। द क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। और जो है पद जो है और पदार्थ जो है वो एक होना चाहिए। पद का अर्थ जो है पदार्थ है, वह दोनों मिल जाना चाहिए, वह शिक्षा का उद्देश्य है। और परावाणी जो है वो शब्दोच्चार के रूप में बाहर आती है, और परा में जो अनुभूति होती है, जो अर्थानुभूति होती है, वह जो है शब्दोच्चार के बाद भी वही अनुभूति होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हिंदी में हाँ उच्चार बोलते, इसलिए मैं ऐसा कह रहा था, क्षमा कीजिए जी जी। संस्कृत उच्चारण वदंती। हाँ, तो समान अनुभूति यह इसका उद्देश्य है। अब आगे बढ़ते हैं स्पीड से, कि व्याकरण, शिक्षा, प्रातिशाख्य और वर्णक्रम, इन चारों के माध्यम से यह करने की कोशिश की जाती है कि जो है केवल शब्दोच्चारण मात्र से शब्द का एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन, एक्यूरेट एक्सप्रेशन ही गोल है। इन चारों का शुद्ध साधु शब्दों का संकलन करना, और बाद में उसको साधु शब्द को बोलने का तरीका सिखाना, और उसके एलाबरेट तरीके में जाना प्रतिशाख्य के द्वारा और वर्णक्रम के द्वारा, और एलाबरेट वे में उसको जाना। मैं एक छोटा सा वीडियो इस संदर्भ में दिखाना चाहूंगा। वर्णक्रम, अभी व्याकरण जानते हैं, शिक्षा जानते हैं हम, ये सब जानते हैं, प्रातिशाख्य को भी सुने हैं हम, मगर वर्णक्रम क्या है ये बहुत नया हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ। ये वर्णक्रम है, इस प्रकार होता है। गणपति, गणानान्त्वा गणपतिम हवामहे जो मंत्र है, इस मंत्र में से गणपतिम, केवल इस एक शब्द का वर्णक्रम जो है मैं प्ले करने जा रहा हूँ। ऑडियो ऑडियो Sorry, stopping because there is a short of time. इसमें आप देखेंगे तो कौन से वर्ण का उत्पत्ति स्थान क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका वर्ण क्या है, उसकी देवता कौन है, उसको न्यास कहाँ करना है, ये सब है। इन सारे नियमों को फॉलो करते हुए यदि आप एक शब्द को उच्चार करेंगे तो उससे जो इम्पैक्ट होना चाहिए वह इम्पैक्ट होता है। उदाहरण लीजिए, ओम इति ब्रह्मा, ऐसे बोलते हो, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा, अग्निर्देवता ब्रह्म इत्यार्षम, ये सब बोलते हैं।
तो यहाँ पर जो है ओम केवल ये ब्रह्म है। अरे गिव सम एक्सप्लेनेशन, ऐसा कोई पूछ सकता है? नहीं, ओम सही, उसको सही सही उच्चारण आप करो तो ब्रह्मानुभूति होगी। ऐसा कोई दूसरा कोई मॉडल बताइए विश्व में। तो सही उच्चारण जो है यह इसका लक्ष्य है, और ये सबसे अलग बात इसमें है। और वक्ता श्रोत्र जो है बोधस्थान साम्य, अभी जो मैंने बताया था अनाहत, अनाहत में जो बात निकलती है अनाहत से जो है वह दूसरे तक अनाहत में ही पहुंचना चाहिए। व्याकरण जो है साधु शब्दों का अलग करने का काम करता है, क्योंकि शब्द पहले से ही शुद्ध है। बाद में उच्चारण स्थान आदि से पृथककरण जो है, पृथककृत शब्दों को वैखरी में निर्दुष्ट प्रयोग ज्ञान, सही सही एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन जो है शिक्षा सिखाती है। इससे क्या होता है, मध्यमा मध्यमा में परापशंति मध्यमा वैखरी में से मध्यमा में जो है मूलाधारोत्पन्न, मूलाधार से उत्पन्न जो विषय है या भाव है या अर्थ है, और हृदय हृदय देश में जो स्थित है, वो जो बोलने वाला है वक्ता है स्पीकर, उनको इमीडिएटली समझ में आ रहा है, बोलने से पहले ही समझ में आता है। मध्यमा के लेवल पे ही वो समझ में आ चुका होता है, वो बोलने की जरूरत नहीं है उसको। मगर मनन मात्रेण अर्थोत्पत्ति, ऐसा मैंने उसको कहा है। किंतु वैखरी में आहत होकर आता है बाहर, अनाहत नहीं रहता, वो आहत होने के बाद ही बाहर आता है। तो बाहर आने के बाद जो है श्रोता जो है, लिसनर जो है, उसको कर्णग्राह्य होता है और हृदयगामी, हृदय में जाता है। और अनाहत में उसके वक्ता के जो अनाहत में जो भाव था वह श्रवण मात्रेण यथार्थ बोध, यथार्थ रूप से एज इट इज वो कन्वे अगर होना चाहिए। ये संभवता, ये पॉसिबिलिटी कहाँ पर है, किसी भी लैंग्वेज में है क्या? ये पॉसिबिलिटी शिक्षा के कारण, व्याकरण के कारण, वर्णक्रम के कारण संस्कृत में ही है। इसलिए आई डोंट कॉल इट एज अ वन मोर लैंग्वेज। हाँ, तो व्याकरण एवं शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति, ये बोल दिया मैंने आपको। आप और नीचे जो इंग्लिश में लिखा है वो तो आप पढ़ ही लीजिए। ये सिद्धांत क्या कह रहा है? आजकल ये लोग एजुकेशनिस्ट लोग ये पेडागोजी में ये कह रहे हैं कि जो है ज्ञान का जो है आपको केवल साक्षात्कार हो सकता है, स्फुरण ही हो सकता है। ज्ञानोदय शब्द बहुत भाषाओं में है, बहुत सारी कन्नड़ तेलुगु इत्यादि भाषाओं में ज्ञानोदयम, ज्ञानोदय इसे बोलते। ज्ञान का उदय यानी पहले से अंदर था, यानी उदय जो पहले से अंदर है उसी का उदय होगा ना। तो ये जो है आजकल एजुकेशन के लोग जो है इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं, किंतु जो है वह संभव पॉसिबिलिटी जो है केवल संस्कृत के माध्यम से है। और एक बात यह है कि हम भारतीय शिक्षण मंडल संयोगी संस्कृत योग गीता, इसका एक 10 दिन का एक शिविर करते हैं। वहां पर जो है हम संस्कृत को एज ए लैंग्वेज नहीं सिखाते, वी टीच इट एज अ साधना। आप उच्चार करो, उच्चार से ही आपके अंदर संस्कार बनते हैं। नो नीड टू नो द मीनिंग, राइट, प्रोनाउंस इट प्रॉपरली। साधना के रूप में करते हैं। हाँ 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 हाँ, परमेश्वरन जी ओनली, दैट्स, हाँ, वी आर फॉलोअर ऑफ हिम ओनली। यस। सो ये घट बाह्याभ्यंतर अर्थ, मैंने कहा कि प्रोनाउंसिएशन करने से पहले लौकिक अर्थ में विश्व में जो प्रचलित नहीं है ऐसा अर्थ अंदर ही कैसे रहेगा और अंदर ही कैसे कन्वे होगा, ये अगर व्याकरण शास्त्र वाले कुछ इसको खंडन कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, मगर व्याकरण का ही मत है ऐसा कि जो है बौद्धार्थ इत्यादि के बारे में कल बात हो चुकी है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ जी। और जो है ये सब बातें आप जानते ही है, शिक्षा में जो है अक्षरोत्पत्ति स्थान इत्यादि आप जानते ही है। इसको मैं थोड़ा आगे ले रहा हूँ। तो अक्षरोत्पत्ति स्थान के चित्र इत्यादि भी आपको मिल ही जाते हैं, जो नहीं जानते तो व्याकरण अध्ययन जिन्होंने किया है उनको तो पता है ही। अभी संस्कृत जो है ये सभी भाषाओं का मदर नहीं है, ये तो मैंने कह दिया। फिर क्या है ये, तो ये अलग है, ये तो बता दिया। किंतु ये सभी भाषाओं का डेस्टिनेशन हो सकता है क्या? इज देयर अ पॉसिबिलिटी टू से दैट संस्कृत इज द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस? उदाहरण के लिए अभी भाषा शुद्धि का अभियान सावरकर जी इत्यादि का बताया, उसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे तो एबीसीडी क्या है, एबीसीडी में ये जो है यहाँ पर स्वराक्षर है, वहां से सीधा कहाँ बी कहाँ आ गया, प फ ब भ, यहाँ ओष्ठ में आ गए। हम जो है जिस क्रम में हम जाते हैं, साइंटिफिक जो मेथड में हम जाते हैं, उस मेथड में वो लोग नहीं जाते हैं।
यहाँ से वहाँ जंप करने के कारण सीखने में भी मुश्किल होती है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉर चिल्ड्रन आल्सो टू लर्न बिकॉज इट इज़ अनसाइंटिफिक वे ऑफ अरेंजमेंट. हाँ, इसको ABCD को रीअरेंज करना पड़ेगा पढ़ने के आधार पर, शिक्षा के आधार पर. In that sense, Sanskrit can become the destination of all languages, not the mother.